Hello student, today we are going to discuss solid state. As we know, matter exists in three different states: solid state, liquid state and gaseous state. In gaseous state, the particles are far apart from each other and the intermolecular forces of attraction holding them together are very weak. In solid state, the intermolecular forces of attraction between the particle is very strong, due to which any kind of motion cannot take place in the particles of the solid state. So what is the general characteristics of solid and what is the internal structure of solid we are going to discuss in this chapter. Solid state. First of all, what is solid state? How can we define a solid? Any substance whose melting point is above room temperature. Temperature at atmospheric pressure. Pressure is known as solid. Solid. It means any substance whose melting point is above the room temperature at atmospheric pressure, which is 1 atmosphere. That substance will be known as existing in the solid state. General characteristics of solid. सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस को आपने देखा होगा, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. सो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सॉलिड मस्ट हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम. सॉलिड स्टेट मैटर का एक ऐसा फॉर्म है जिसका शेप भी डिफाइंड होता है और जिसका वॉल्यूम भी डिफाइंड होता है. इट मीन्स इफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज केप्ट इन अ कंटेनर, whatever may be the shape and size of container, the shape and size of solid state will remain same. Second feature, solids are almost incompressible. अब देखिए, इस प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट से डिफर करते हैं. गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, गैसेस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, लिक्विड्स को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, बट सॉलिड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स. Particles are fixed. The position of particles are fixed. Since solid state में particles के बीच में जो intermolecular forces of attraction operative है, that is very strong attractive forces, और उन forces के कारण particle अपनी position से हट नहीं सकते हैं. It means any kind of motion in the particles are not possible. They can exhibit only vibratory motion at their points. Fourth property, solids have high density. कंपेयर टू गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, उनका वॉल्यूम कम होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिनके पास ये फीचर्स होते हैं, दे आर नोन एज सॉलिड स्टेट. ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, solids are made up of particles
These particles may be ion, these particles may be atom, these particles may be molecules. But how these particles are arranged in three-dimensional space? इसका मतलब जो सॉलिड का स्ट्रक्चर बन रहा है, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, उस अरेंजमेंट की बेसिस पर हम सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. On the basis of arrangement, of particles and their properties, solids are classified as true solids or crystalline solids. Second category is pseudo solids or amorphous solids. अब देखिए पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है. उन पार्टिकल के अरेंजमेंट पर ही डिपेंड करेगी उस सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ position of particle, their arrangement of particles, solids are classified as crystalline solid and amorphous solids. Crystalline solid, मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो आप अपने नेचर में, अपने सराउंडिंग में देखते हो, जहां पर पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स. सेकेंड कैटेगरी इज एमॉर्फस सॉलिड्स. अब देखिए एमॉर्फ, इट मीन्स शेपलेस, ऐसा सॉलिड जिसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है. इट मीन्स जहां शेप में एक डेफिनिटी नहीं देखी जाती है, उनको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड्स आर ऑल्सो नोन एज शूडो सॉलिड्स. शूडो का मतलब क्या होता है? झूठ, झूठा. इट मीन्स अपीयरेंस से ऐसा लगता है कि दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, but actually they are super cooled liquid and in some of the property they resemble with the liquid. For example, आपने रबर देखा होगा, रबर इज अमॉर्फस सॉलिड. ग्लास देखा होगा, ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड. अब आपने रबर के बारे में सुना होगा, रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट लेटेक्स. तो जब रबर को प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, उस समय वो लिक्विड स्टेट में रहता है. जब वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि ये सॉलिड बड़े आसानी से रबर मोल्टेन स्टेट में आ जाता है. तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें वो लिक्विड से रिजेंबल करता है. सो इट इज बेटर कि हम उनको सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह कंसिडर करें. अनदर एग्जाम्पल, ग्लास. कभी आप किसी म्यूजियम में गए हैं? आप किसी पुरानी बिल्डिंग में जाइए, म्यूजियम में जाइए और उनके विंडो पैन्स को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए. देन यू विल सी दैट विंडो पैन्स का जो नीचे का पोर्शन होता है, वहां की ग्लास में थिकनेस ज्यादा होती है कंपेयर टू ऊपर वाले अपर पोर्शन. जो नीचे वाला पोर्शन होता है, वहां ग्लास की थिकनेस ज्यादा होती है. अब ग्लास की थिकनेस कैसे ज्यादा हो गई? क्या बनाने वाले ने बनाते समय पार्शियलिटी की थी? उसने आधा पोर्शन थिकनेस उसमें वेरिएशन डाल दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. ग्लास इज बेसिकली अ सुपर कोल्ड लिक्विड. बनाते समय उसको बिल्कुल होमोजीनियस, एक जैसा सॉलिड स्टेट दिया गया था. बट सिंस दिस टाइप ऑफ सॉलिड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, उसके पार्टिकल धीरे धीरे फ्लो करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं.
सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वहां ग्लास वॉल की थिकनेस में फर्क आ जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, नीचे की वॉल की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी और ऊपर जो विंडो पैन्स आपको दिखाई देंगे उनकी थिकनेस कम हो जाती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज सॉलिड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट शेप, अमॉर्फस सॉलिड जिनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट शेप नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। Now let us see what are the differences between crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solids and amorphous solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंसेस को समझने के लिए हम किसी क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। ओके, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सोडियम क्लोराइड। As you know, sodium chloride is an ionic compound and ionic solids are formed by regular arrangement of cation and anion. So what should be the probable arrangement of sodium ion and chloride ion? Suppose this is sodium ion. White color से हम sodium ion को mark कर रहे हैं. This is sodium ion, sodium ion, sodium ion, sodium. पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है? दिस इज सोडियम आयन, दिस इज क्लोराइड आयन। सपोज इस तरह से पार्टिकल का एक रिपीटिशन है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। दिस वन इज सोडियम आयन, दिस इज क्लोराइड आयन। अब स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द लैटिस। तो सबसे बड़ा डिफरेंस या पहला पॉइंट जो हम कंसीडर करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स फॉलोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। यदि आप इस क्रिस्टल के स्टडी करेंगे तो एक सोडियम आयन, एक क्लोराइड आयन, एक सोडियम आयन, एक क्लोराइड आयन मिलेगा। अब देखिए एक अमॉर्फस सॉलिड लेते हैं। अमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जांपल है ग्लास। ग्लास इज बेसिकली सिलिका। सिलिका अमॉर्फस सॉलिड में यदि हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो ये अरेंजमेंट कैसा होता है? एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, इस तरह से पार्टिकल्स को अरेंज होना चाहिए। अप टू सर्टेन डिस्टेंस पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी throughout the lattice they will form the same repetition, same arrangement. ऐसे देखिए यहां तक आइडियल अरेंजमेंट है अप टू सर्टेन डिस्टेंस। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इस ऑर्डर को ओबे न करे। तो जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करने लगता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है, तब हम उस सॉलिड को बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इफ पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। इफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है देन इट इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। अब आप अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए कि किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यहां समझते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं जहां डिफरेंस होता है। ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
while amorphous solids are having diffused melting point. Now what is the meaning of sharp melting point and diffused melting point? ये आपको समझना है. देखिए melting point क्या होता है? सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से फ्यूज्ड होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए. अब यदि सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिव है उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ब्रेक कर देंगे, उसके बॉन्ड्स को तोड़ देंगे, तो ये पार्टिकल सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है. इट मीन्स आप यहां देख सकते हैं कैटायन और एनायन के बीच में यहां जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहां दिखाई दे रहा है, उतना ही डिस्टेंस यहां दिखाई दे रहा है. It means these ionic bonds are of equivalent energy. All these bonds are identical. Each and every bond requires the same amount of energy to dissociate. तो जैसे ही हम इस सॉलिड को हीट करना शुरू करेंगे, सारे बॉन्ड को जब उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलेगी तो एक साथ ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे. It means at a particular temperature which is called its melting point, पूरा का पूरा solid liquid state में convert हो जाएगा. Now what happens in case of amorphous solid? यहां पर आप देखिए इन दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस यहां डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है. पार्टिकल्स के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को ही बोला जाता है बॉन्ड लेंथ. इट मीन्स इन अमॉर्फस सॉलिड ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल, सो दीज बॉन्ड्स रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिसोशिएट. कुछ बॉन्ड को कम एनर्जी चाहिए टूटने के लिए, कुछ बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी चाहिए टूटने के लिए. जब ऐसे सॉलिड को हम हीटअप करना शुरू करेंगे, ऑल दोज बॉन्ड्स जिनको कम एनर्जी की जरूरत है वो पहले टूट जाएंगे, जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वो बाद में टूटेंगे. इट मीन्स सारे बॉन्ड एक साथ नहीं टूट रहे हैं और इसे फिनोमेना को बोला जाता है डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट. ओवर अ टेम्परेचर रेंज द सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट डिफरेंस, when crystalline solids are cut through a sharp knife, they will produce sharp edges. Sharp edges का फॉर्मेशन होता है. जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कट करेंगे, सिंस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस फिक्स है इसलिए कट करने पर वो शार्प एजेस का फॉर्मेशन करते हैं. लेकिन जब हम एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं थ्रू नाइफ तो वहां पर इररेगुलर कट्स प्रोवाइड होते हैं. इररेगुलर कट्स प्रोवाइड होते हैं. इररेगुलर कटिंग, इररेगुलर ब्रेकेज आपको दिखाई देगी. नेक्स्ट डिफरेंस, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है सब्सटेंस की ज्योमेट्री. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड. रेगुलर अरेंज होने के कारण इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है. इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री है. इस डेफिनेट ज्योमेट्री की बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इनका एक डेफिनेट शेप होता है. बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड यहां देखिए पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है. इट मीन्स यहां के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट और यहां पर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस क्रिएट हो गया. जब डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उनकी ज्योमेट्री में भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है. सो दे आर हैविंग इनडेफिनेट ज्योमेट्री. Indefinite geometry, it means we cannot say anything about the shape of amorphous solid. The most important difference, crystalline solids are known as anisotropic solids, while amorphous solids are called isotropic solids. Isotropic solids. आपको ये पता है कि हर सॉलिड सब्सटेंस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होता चला जाता है.
Such type of properties are refractive index and electrical conductivity. अब यहां पर टर्म देखिए, आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक इट मीन्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ऐसी किसी भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड अमॉर्फस सॉलिड में लिया जाए तो हर तरफ एक जैसा आएगा। इट मीन्स यदि हम ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में मेजर किया जाए या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में मेजर किया जाए, हर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी। But these crystalline solids are anisotropic. N it means absence of isotropy in the solid state. So why absence? Absence का मतलब आपको क्या समझ में आया? If refractive index की वैल्यू देखी जाए तो उसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में डिफरेंट दिखाई देगा और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में डिफरेंट दिखाई देगी। ऐसा डिफरेंस क्यों है ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, जब हम इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगी। एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन। इट मीन्स इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह का है, कैटायन एनायन कैटायन एनायन। लेकिन इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में उसके पाथ में क्या आ रहे हैं, ओनली एनायंस। तो एनायंस के केस में प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड अलग दिखाई देगा, कैटायन एंड एनायन होने के कारण प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट दिखाई देगा। सो सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स व्हाइल अमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। एक और टर्म देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अभी हमने पढ़ा आइसोमॉर्फस सब्सटेंस और अमॉर्फस सब्सटेंसेस। ठीक है, दो तीन टर्म ऐसे होते हैं जो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे एक टर्म मैंने लिखा पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा टर्म होता है आइसोमॉर्फिज्म और तीसरा टर्म अभी आपने पढ़ा एमॉर्फिज्म, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स, अमॉर्फस तो क्लियर हो गया। अमॉर्फस का मतलब हुआ ए, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, दैट इज डिफरेंट शेप और डिफरेंट ज्योमेट्री। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनके फॉर्मूला में सिमिलैरिटी होती है और जिनके स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी होती है, उनको बोला जाता है आइसोमॉर्फस सॉलिड्स एंड फिनोमेना इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। जैसे एक एग्जांपल देखिए, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O। दिस इज फेरस सल्फेट, इसको बोला जाता है ग्रीन विट्रियोल। जिंक सल्फेट, इसको हम बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। अब आप देखिए, ये दो अलग अलग कंपाउंड हैं लेकिन दोनों के फॉर्मूला में सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। Such type of substances are known as isomorphous substances and phenomena is known as isomorphism. Now see polymorphism, polymorphous substances। पॉली का मतलब होता है कई बार ऐसा होता है कि एक ही सब्सटेंस डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर लेता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दैट फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म एंड सब्सटेंस को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। जैसे एक एग्जांपल देखिए, केमिकली इट इज कार्बन। अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कार्बन का स्टैकिंग पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। ये कार्बन डायमंड का फॉर्मेशन भी कर लेता है और यही कार्बन ग्रेफाइट का फॉर्मेशन भी करता है। सो बेसिकली वेदर इट इज डायमंड और ग्रेफाइट, इट इज कार्बन
फॉर्मूला उसका सेम रहेगा, सिंबल उसका सेम रहेगा. बोथ द फॉर्म एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर? जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पैटर्न होता है वो डिफर कर जाता है. तो जब सेम सब्सटेंस अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस. जब डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्सटेंस. एंड एमॉर्फस सब्सटेंस, दे आर सूडो सॉलिड्स और दे आर सुपर कोल्ड लिक्विड.